हमारे बीच में हमारे ऑनरेबल आरओ साहब जितेंद्र कुमार यादव जी आ चुके हैं। आई वेलकम हिम। नमस्कार सर। नमस्कार सभी लोगों को। Shall we Good start? afternoon, sir. Good afternoon, sir. चार बज के 1 मिनट हो चुका है। I think we can start. We have already 122 participants. Yes, sir. Akshay ji, we can start now. ये टाइम हो चुका है और पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे आते रहेंगे, ज्वाइन करते रहेंगे। सभी को नमस्कार। I am Lakshya Chhabadiya. Today we are all facing a difficult time due to this pandemic. Time is very critical, and we all pray to Almighty to give us strength so that we can face the upcoming challenges. We become strong, we can face everything. During this difficult time, we have lost our near and dear ones, and we don't know how many friends we lose, but we have to be strong. We are educators. Doctors are working like soldiers are on the borders. We are the teachers, we are the educators. We are ready to give result of our children because this is our prime duty. We are together, we are committed for our children. So therefore we are always with CBSE. We are all ready to do anything whichever CBSE ask. इस मुश्किल घड़ी के लिए एक बात याद आ रही है मेरे को। अकबर ने बीरबल से पूछा, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण बोलो कि जो दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए। तो बीरबल ने बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब कैसा भी वक्त हो जरूर बदलेगा, और ये जो मुश्किल का दौर है ये जरूर निकलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। To address our queries related to class 10th CBSE board examination, we have our honorable chief guest Shri JK Yadav ji. He is the regional officer of CBSE East region, Delhi. He is soft spoken, he is hardworking, he is always supported for the schools, and we are honored to have him in this webinar. Now I will introduce two more principals. Madam Neeta Dua, she is the principal of Little Flower Group of Schools. She is renowned principal. She has more than 30 years of experience. We welcome her. We have Madam Meenakshi Gupta. She is outspoken, dynamic. She has made her school e-school. She is a CBSE trainer, always helpful. We welcome her to this webinar. Now I will explain the flow of the program. First of all, Ma'am Meenakshi Gupta will show a PowerPoint presentation, and I will request our Honorable RO sir to address schools, teachers. After that, we will take question answer session. Question answer session will be addressed by Neeta ma'am, Rohit ji. Now I request Meenakshi ma'am to show the presentation. Just a second. Thank you so much, Lakshya ji. यादव सर नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे ऑनलाइन ही सही फेस टू फेस बात हो रही है। आजकल तो यही न्यू नॉर्मल है
कि एक दूसरे को ऑनलाइन देख लें तो लगता है कि मिल लिए हैं। और थैंक्स अ लॉट लक्ष्य फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और आज जो बेसिकली हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो सच में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है मैं कहूँगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जैसे लक्ष्य ने कहा, हम लोग एजुकेटर हैं and challenges are given by the God only to those who are capable of undertaking those. तो शायद ये हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि हमने लास्ट ईयर भी इतने एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी सीबीएसई की गाइडेंस में सपोर्ट में हमने प्रॉपर अपना एग्जाम जो था 12th का 10th का कंडक्ट कराया और रिजल्ट दिया टाइम पर। और इस बार भी जो सीबीएसई ने इतना अच्छा स्टूडेंट फ्रेंडली एक डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से हम सब बहुत टेंशन में थे कि 10th क्लास के बच्चों का क्या होगा, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे हैं। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे से जब भी बात होती थी फ्रेटर्निटी में हमारी, तो मैं यही कहती थी कि सीबीएसई इज ऑलवेज स्टूडेंट फ्रेंडली एंड आई एम वेरी श्योर सीबीएसई इज गोइंग टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और आज जो हमें एक पॉलिसी सीबीएसई ने दी है, अगर उसको हम ध्यान से पढ़ें तो उस पॉलिसी के अंदर कुछ नया नहीं है। हम सब लोग 2010 से और 2015 तक काफी रादर उसके बाद तक हम लोग जो सीसी का पैटर्न फॉलो करते आते थे, जिसमें हमने इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे बच्चों को हम प्रमोट करते थे 10th क्लास में। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करने की कोशिश करें तो काफी हद तक हमें हेल्प मिल जाएगी। और दूसरी चीज, आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन, आई विल बी discussing that the entire policy with that, but there are 4 things which after studying the policy I have come to know। 4 चीजें हैं जो शायद हर टीचर अपने बीएड में सीखता है जब हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट की बात करते हैं। वो 4 चीजें जो है उन्हीं पर पूरी पॉलिसी बेस्ड है, और अगर हम उसको अपने दिमाग में रख लें काम करने से पहले, तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ भी डाउट होगा। और वो 4 चीजें हैं रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। इन 4 चीजों पर ही पूरी सीबीएसई की जो पॉलिसी है जो दिए है क्लास 10 के लिए, ये पूरी बेस करती है। और आई थिंक वी हैव अ वेरी एग्जॉस्टिव सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉलिसी। ईच एंड एवरी वर्ड इज डिस्क्राइबिंग वेरी क्लियरली, but even after that, if anybody has any doubt, I think we all can discuss, and these platforms are very useful for all those healthy discussions। वैसे तो सबके पास पॉलिसी है, सब पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार वही जो आदत होती है हम लोगों की, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिफोर कमिंग टू द रियल क्लास ऑफ इंटरेक्शन। लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट द पॉलिसी हैज सेड। आई हैव अ स्मॉल पीपीटी, प्लीज अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। So this is the policy which has given us the tabulation of the things, and the main aspect of this is that this year, as we all know, that CBSE has cancelled, and the result to be prepared on the basis of the criteria given by them. And also, as we know, that CBSE is very flexible. So here CBSE has also given an option to the children, if they are not satisfied with the result which has been prepared by the school, they can again go for the pen and paper test whenever the situation, we know whatever is the situation going on right now. So whenever the situation becomes little better. So as I said, that the main objective of the policy is to develop a reliable, valid, fair and flexible system of evaluation. So we as educators, we know very well what is reliability, what is validity, and how we have to be fair in our assessment. And of course, a key word that has been given by the CBSE that will sort out many of our queries and confusion is the flexibility. And that is what CBSE, I think, is the only board in the world which comes up with all those flexible solutions, because at the core of the entire system is the student. So they are learner friendly board, and that is why they have said there is a lot of flexibility. And if you read the policy, you will find that lot of flexibility has been given
in order to see wherever there are certain situations where there is no, it's not like a kind of a compartmentalized, tight fit compartmentalized kind of a system. But of course, before being flexible, we have to take care of the three things: that it has to be reliable, it has to be validated, and it has to be fair. And then, of course, we need to have that is what the crux of any evaluation system is, that it has to be transparent and unbiased. We all have been doing that for a number of years, and I think all of us know that objectivity, being very objective, being unbiased, and being very transparent, that is what the board wants. If that is quite evident when the board has even given an opportunity for the children to look at the answer sheets. The scanned answer sheets are also, if you see, are available. So that shows the transparency of the entire system. This is the division of marks for each subject. As per the policy, we have internal assessment that has already been given by the board. Instructions have been given, and some of the schools have even uploaded. Some are in the process. 20 marks for the internal assessment. And then the assessment done by the school is for 80 marks as per the policy given. And so it will make 100 marks. So every student will get a result out of 100 marks for each subject. Now, internal assessment, this is what is the, some of the people have still in their mind that how they have to do it. I think this is a standardized form of the internal assessment criteria, which all of us have, most of us have followed. 5 marks for the subject enrichment activities, 5 marks for the portfolio, 5 marks for the group activities related to the subject, and 5 marks for the pen paper test. Now, this pen paper test can be your PT, periodic test, can be your UT, can be your any form of online test which has been taken. So it all makes 20 marks. And these marks have to be uploaded by latest by 11th of June, as it has been given in the policy. And now coming to the main aspect, that is for the external assessment. 10 marks for all PT or UT or whatever assessment that school has taken as a pen paper test, whether online or offline. So 10 marks for that. Half yearly or the midterm, we have 30 marks for that. And for the pre-board examination, it is 40 marks. So, and there is an exhaustive description for all those who have got one test, who have got 2 tests, or who have got no test. Everything is clearly given, mentioned over there. Here, I would just like to, just recollect or reiterate what the board has said, that for the external assessment, in case school has conducted more than 1 test within each category, then either weightage of the best or average of all can be considered. This is what I was talking about, the flexibility. So it is because the teachers who are teaching students are the ones who are making the result. So this much flexibility and empowerment has been given by the board, that the committee which will form will see that whether you want to take the average, or you can want to take the best score. And if the school has not conducted 1 or more the given category exam, then committee to decide a criteria mentioned in the rationale document. And whatever criteria has been decided by the committee, that has to be given in the proper documentation in the given in the annexure over there. So this is about the result committee. The result committee that has to be constituted should have these 8 members. Of course, principal will be the chairperson, because he or she is the one who is responsible for the smooth conduct and a fair conduct of a preparation of the result. And then there will be 5 teachers. Now these 5 teachers will be from the different streams, from the different subjects, from maths, science, social science, and any 2 languages. Like in my school, we have Hindi and English. So we have taken math, science, social science, Hindi and English teachers as the part of this internal committee. Now there could be more than 1 teacher who is teaching these subjects. So the question comes that whom to be taken and whom not to be taken. So the criteria that I have followed is, I have seen whosoever is the most senior one. So we have taken that person, and who has got the maximum sections that the teacher is teaching, because she will have a more exposure and must be knowing the children more, because she's teaching more than 2 or 3 sections of 10th.
And for the external committee, we need to have 2 teachers. These 2 teachers are supposed to be the TGT. That means they are teaching class 10th. That's very categorically given over there, that the teachers who are teaching class 10, because they will be knowing well about the syllabus, about the different system that we are going to follow. Now, the main concern of even of my staff was about the standardization that has been given, the details that have been given. So here CBSE has given us that every school will have a reference year. And now how will we take out this reference year? This will be the year which has the highest performance in the previous 3 years board examination. For example, for the last 3 years, my result was 97%, 93, and then 98. So the highest is the 98. So that will be my reference year for that. If the data is available for 2 years, then best performance out of the 2. And there are certain schools who have started class 10 just 2 years back. There could be some schools who have started class 10 even last year only. And there could be schools who have just started this year only. They have started with class 10. So all the details have been given over there. If it is for the last 2 years, then take the best. If it is for the last year only, take that only. And if you are a first timer, then of course board will provide you the details that how you have to go about it. And then for the overall average marks of the school assessed in 21, for all 5 subjects should not exceed the overall percent marks obtained by the school in that reference year. So that we have to keep in mind, that our results should not scale so high that we had never, and then it should not go down. That means there is some problem. Why it is happening and why board has given all this is, that is what the reliability and the validity test comes in. That shows the consistency of the result of the evaluation. So in order to maintain that consistency, in order to maintain that validity of the test, this reference year and this standardization has been taken. And then the subject-wide marks assessed by the school for this year should be within the range of plus or minus 2 marks obtained by the school in that subject in the reference year. So if this year my student has got, for example, last year the maximum marks in English in my school was let's say about 92%. Then this year, I'm talking about the reference year that I have taken. If it was 92% the reference year, this year it could be 90 or 94. So plus 2 or minus 2 can be taken care of. That is what the validity talks about. And then the candidate who have not appeared in any assessment, school may conduct offline or online or telephonic kind of an assessment for them. But yes, one thing is very important, that whatever assessment we are doing, we need to have the record record the evidence of that. It is not only for all those who are doing it for this purpose that the candidate has not, even those who have already done it. The entire data that we are going to analyze should be kept by the principal in the safe custody, so that later on, if required by the board, we are able to produce that. And then the candidates who have benchmark disability, I think they can be, assessed on any kind of activities like portfolios, quiz, oral test, but of course there has to be a record of all the evidences that on the basis of which you have given them marks. And then if there are more than 5 subjects, some children appear for the 6 subjects or some children appear for the 7 subjects. So what a board has said that if there are more than 5 subjects, then take the best 5 subjects in which the child has out of 5 subjects, which we have assessed. Take the best 3 subjects in which the child has scored, and then take the mean, and then those marks will be allotted to the in the 6th subject or in the 7th subject. Then when we are talking about this preparation of the result, there are certain points, important points that we all need to understand, that all evidences are to be kept. That is what I said, that every evidence that on which we are the entire process of marking the children is being based, that and all the evidences are very important to be kept. And this is the duty of the chairperson of the committee, the principal, who has to take care of it. And then the grace marks are also applicable.
And in case a student is unable to meet the qualifying criteria, then he or she will fall under the compartment. And if there is a compartment, then it is upon the school to conduct that compartment exam, whether online or offline. Both the options have been given. And of course, these students, as we do even in our school exams, if the child has a compartment, the child is allowed to sit in the next class till the result comes. Similarly, that any child who has got a compartment, the child would be allowed to continue in class 11 till the result is declared. And all the students with yes, that is very important, because last year when we talked about the standard and basic maths, there was a lot of hue and cry. The children who had standard maths should be allowed to have maths only in class 11. But this year, very categorically, board has said that any student who has whether a standard maths or a basic maths, they are allowed to take maths in class 11. There is no cap of having standard or basic maths to opt for maths in class 11. So that is also something which has to be kept in mind. And I think this time schedule, it has already been given in an Exter 4. If you read the document, by tomorrow, we all have to form the committee. And by 10th, we have to talk about the provision of subject-wise, school-wise distribution of marks as per the previous board exam by CBSE, and then finalization of the rationale of the document that we are going to use. And then conduct of assessment, if any is left, suppose child has not been appeared in any of the tests, or some assessment has not been done for one particular child, not even a single assessment has been done for any particular child, then this assessment can be done by 15th of May. And then the portal, CBSE portal for uploading of the marks will be available from 20th of May. And the finalization of the result has to be done by the schools by 25th. And then checking and moderation of marks to be done by 28th. And then submission of the marks to CBSE has to be done latest by 5th of June. And for submission of the internal assessment marks, which have to be out of 20 marks, 11th June is the last day for that. And then declaration of result will be on 20th of June. That is quite evident to all of us. So this is the gist of, you can say, the entire document that we have. And I have tried to make it a little simplified and make it in the day-to-day language of the teacher so that they can understand. But there is nothing to panic or nothing to worry about it. Let us not be students, let us be like teachers and try to, simplify the things. There is nothing difficult in that. The only thing is, once you will start working in that, we will automatically, come to it. So that is what I have. Thank you so much. Thank you, Meenakshi ma'am. You have wonderfully explained each and every aspect of the upcoming result. Now I invite our RO sir to address the teachers, leaders. Thank you. Good evening to all. Here. Thanks to Lakshya for conducting this workshop, so that if any will be clear then and there. Meenakshi madam has explained the circular in a friendly manner. Points have been very well explained. आप सभी लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सर्कुलर को पूरा ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज को समझें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेरी उसमें से बचने वाली है। एक दो समस्याएं हैं जिसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं, अदरवाइज कल मेरे पास जो अभी ये व्हाट्सएप में कुछ क्वेरी भेजी गई थी, इसको मैं देख रहा हूं कि लगभग इसमें 15 क्वेरीज थी और 15 में से ज्यादातर क्वेरीज तो हमारे सर्कुलर में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। बस जरूरत है कि उस सर्कुलर को पूरी तरह से समझना, पढ़ना। तो उसके बाद जैसा भी मीनाक्षी मैडम ने बताया कि आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर आपको इसको पढ़ना है, आपको हर एक चीज को समझना है। और कुछ भी अगर हम देखा जाए तो बहुत कुछ नया नहीं है, जो पहले हम
स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2010 से हमने शुरू किया था। लगभग उसी का कुछ मिला जुला इस सर्कुलर में, इस नोटिफिकेशन में दिया गया है, जो प्रोसेस हमें अभी इस साल के रिजल्ट के लिए एडॉप्ट करनी है। अभी जैसे इसमें पहली क्वेरी थी रेफरेंस ईयर, तो रेफरेंस ईयर वो आपको नहीं करना है, वो तो जब हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे तो हम उसके बैकएंड में जो आपको डेटा दिखाई पड़ेगा वो आपको बेस्ट आउट ऑफ द 3 इयर्स वो दिखाई पड़ेगा। अगर कोई 3 साल वाला स्कूल है तो बेस्ट ऑफ द 3, 2 साल वाला है तो बेस्ट ऑफ द 2, और सिंगल फर्स्ट ईयर वाला स्कूल है तो उसके लिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का जो भी कैटेगरी का स्कूल है, गवर्नमेंट है तो प्राइवेट है, जैसा भी कैटेगरी का स्कूल है उस तरह का उसको रिजल्ट उसमें दिखाई पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए रेफरेंस ईयर के लिए तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें क्वेरी थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए होगा या डिफरेंट ईयर्स के लिए होगा, तो इसमें मैं जैसा सर्कुलर में लिखा हूं डिफरेंट ईयर्स के लिए होगा, सब्जेक्ट वाइज उसको ईयर से हम अलग अलग नहीं करेंगे। अगर पर्टिकुलर एक ईयर में रिजल्ट बेटर आ रहा है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मैथ का पिछले साल बेटर था और इंग्लिश का अगले साल बेटर है, ऐसा नहीं देखेंगे। पूरा ओवरऑल रिजल्ट, इसको जो भी बेटर रिजल्ट है वो उसमें से लेके और आपको सॉफ्टवेयर में दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी है, जो सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आपको सारा कुछ रिकॉर्ड अपना इकट्ठा करना है, जो भी आपने टेस्ट लिए हैं, मिड टर्म लिए हैं या प्री बोर्ड लिया है, ऑफलाइन लिया, ऑनलाइन लिया, जो भी जिस प्रकार से भी आपने कैंडिडेट्स को असेस किया है वो सारा आपको रिकॉर्ड एक जगह इकट्ठा रखना है और उसको एक कंपाइल कैसे करना है कि अगर आपने सपोज 10 नंबर का जो हमारा इंटरनल जो यूनिट टेस्ट वगैरह जिसको हम कहते हैं या मंथली टेस्ट कहते हैं, वो आपको सारा एक जगह इकट्ठा करके और उसको 10 नंबर का वेटेज देना है। इसी तरह से जो आपके मिड टर्म अगर आपने कराए हैं तो उसको वेटेज देना है, फिर प्री बोर्ड को वेटेज देना है। अभी यहाँ पे इसमें एक क्वेरी थी कि अगर इसमें स्टूडेंट वाज एब्सेंट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन प्री बोर्ड और हाफ ईयरली, तो वो भी अभी आपको वैसे तो क्लियर इसमें बता दिया गया, सर्कुलर में भी लिखा है, तो आप उसको टेस्ट तो आपको करना है, तो उसके लिए 15 मई तक का आपको उसमें समय दिया गया है। आप उसका ऑनलाइन टेस्ट करें, ऑफलाइन टेस्ट करें, टेलीफोन से टेस्ट करें, किसी भी तरह से टेस्ट करें, उसका एक रिकॉर्ड बना के आपको रखना है। उसके बाद ये दूसरी क्वेरी भी इसी तरह की है कि चाइल्ड हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी वन ऑफ द एग्जाम, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, तो ये भी सेम उसी तरह से है। स्टूडेंट डज नॉट स्कोर मार्क्स इन प्री बोर्ड, ये भी सब वही है। तो मोस्टली तो क्वेरी आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। एक है इसमें वन टीचर हु इज इन आवर स्कूल टीम कैन आल्सो बी टीम मेंबर ऑफ अनदर स्कूल, इसमें कोई रोक नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि वाइस वर्सा नहीं होगा, जहां से आपने टीचर बुलाया है वहां आप अपना टीचर नहीं भेजेंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी एक इसमें सर्कुलर में ये चीज क्लियर भी दी हुई है। और दूसरा जो सेम मैनेजमेंट का लिखा हुआ है कि सेम मैनेजमेंट के अगर 2 स्कूल है तो वो भी वाइस वर्सा अपने टीचर्स नहीं भेजेंगे। उसके बाद इसमें एक तो क्वेरी है मॉडरेशन के लिए। मॉडरेशन एक्चुअल में जो 2 तरह का है, एक तो जो हम बोर्ड में जब रिजल्ट बनाते थे, मॉडरेशन करते थे, तो वो एक डिफरेंट सिस्टम था क्योंकि वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट होते थे और उनका आपस में जो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस होती थी उसका मॉडरेशन किया जाता था। यहाँ पर जो मॉडरेशन इस सर्कुलर में कहने का मतलब है वो मॉडरेशन है कि आपको अगर किसी बच्चे को सारा असेस करने के बाद आपको लग रहा है कि उसका नंबर कम आ रहे हैं तो आप उसका 2 नंबर जो इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है वो आप उसको बढ़ा सकते हो अपने असेसमेंट से अलग जाके। ये यहाँ पे मॉडरेशन इस शब्द को कहा गया है। अदरवाइज तो जो आपने कैंडिडेट का असेसमेंट किया है वो मार्क्स आपको उस रेशो में कैलकुलेट करके रखने हैं। तो दूसरा जो जब आप ये सारा कैलकुलेशन करके रख लेंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको जो पिछले साल का बेस्ट रिजल्ट है वो आपको दिखलाई पड़ेगा। उससे आप अपना जो आपने मार्किंग की है उसको देख सकते हैं। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जाएगा। जब आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाया जाएगा कि सपोज मैथ में मैक्सिमम मार्क्स आपके स्कूल में 90 हैं, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस कि कितने बच्चों के नंबर 30 से 40 के बीच में आए थे, कितने बच्चों के नंबर 40 से 50 के बीच में आए थे, कितने बच्चों के नंबर 80 से 90 के बीच में थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाया जाएगा। तो आप उसके लिए जो ये मॉडरेशन बोला गया है कि 2 या 5 नंबर 2 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, तो वो 2 नंबर इसीलिए दिया गया कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 60 से 80 में लास्ट ईयर इतने बच्चे थे और इस साल 50 से 60 में रह जा रहे हैं या 60-70 में रह जा रहे हैं, तो वो आप उनको 2 नंबर बढ़ा सकते हो। लेकिन वो फिर ओवरऑल जब एवरेज आप निकालोगे
तो जो एवरेज है वो उस सब्जेक्ट का लास्ट ईयर के एवरेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा उसमें मैनुअली एक्सरसाइज करनी है जब तक कि हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होकर आपको डिस्प्ले करने के लिए, अभी इसमें 10 तारीख का समय दिया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को तैयार करके जो भी आपका पिछले साल का रिजल्ट डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उस पर डाल देंगे। बाकी और इसमें क्वेरी मुझे बहुत ज्यादा ऐसी कुछ नहीं लग रही है। एक इसमें लिखा है ऑफलाइन या ऑनलाइन काम करने के लिए, तो अगर आपके पास सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिकॉर्ड स्कूल में है, ऑफलाइन रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तब तो आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड तो फिर आपका स्कूल में है, उसको तो ऑनलाइन कन्वर्ट एक ह्यूज एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इट इज एज पर योर कन्वीनियंट। अगर आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड अवेलेबल है तो टीचर्स, प्रिंसिपल्स मिलके ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। दूसरा लिखा है गवर्नमेंट टीचर या कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जो भी टीजीटी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, अगर वो टीजीटी हैं तो वो कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। एक और भी कल किसी ने पूछा था मेरे पास कि जो हमारे यूसी कैटेगरी के स्कूल हैं वहां से टीचर्स को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी बोर्ड एग्जाम में उन स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास टीजीटी अवेलेबल है, तो उनके टीजीटी को भी लिया जा सकता है। अभी यहाँ पर एक समस्या है जिसका मैं पहले बता देता हूँ, मैंने हेडक्वार्टर से पूछा हुआ है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आपको हो सकता है 1-2 दिन में जो FAQ हम डालेंगे उसमें मिलेगा, कि कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर एक ही टीजीटी हो, सपोज मैथ का एक ही टीजीटी है या साइंस का एक ही टीजीटी है, और वो गाँव चले गए हैं, क्योंकि दिल्ली में लगभग 15-20 दिन पहले से लॉकडाउन चल रहा है और सारी एक्टिविटी बंद कर दी गई थी, तो हो सकता है ऐसे टीचर्स गांव चले गए हों, तो उनके लिए अलग से एक FAQ में कुछ ना कुछ अभी एक समाधान आएगा, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज में क्लियर हैं, और आप लोगों को बहुत ही फ्री हैंड दिया गया है कि अपने स्टूडेंट्स का एकदम फेयर असेसमेंट करें। कोशिश करें कि किसी भी स्टूडेंट को पार्शियलिटी ना हो। आपका टीचर का या किसी का स्टूडेंट के साथ बिहेवियर कैसा हो सकता है, आपके मैनेजमेंट के साथ कैसा बिहेवियर हो सकता है, लेकिन असेसमेंट करते समय इन सब चीजों से ऊपर आए और कोशिश करें, इंश्योर करें कि असेसमेंट एकदम फेयर हो, किसी को आपके टीचर्स के ऊपर या आपके प्रिंसिपल, आपके प्रोसेस के ऊपर किसी को भी उंगली उठाने का मौका ना मिले। पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखें, जो भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है उसको रिकॉर्डेड रखें, सारे टीचर्स की जानकारी में हो, जो कमेटी मेंबर्स बनाए गए हैं वो उससे अवेयर हों कि हमने किसी बच्चे को 2 नंबर बढ़ाए हैं तो क्यों बढ़ाए हैं, किसी बच्चे ने अगर कोई भी टेस्ट नहीं दिया है तो हमने किस तरह से उसका असेसमेंट किया है। तो सारी प्रोसेस को एक रिकॉर्डेड वे में, रिकॉर्डेड मेथड में रखना है, सेफ कस्टडी में रखना है, क्योंकि जितना आपकी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी उतना ही प्रोसेस बढ़िया भी होगी और फेयर भी होगी, उसमें किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। तो मेरा बार बार यही अनुरोध है कि आप प्रोसेस को पूरा ट्रांसपेरेंट रखें, पूरा रिकॉर्डेड रखें, हर एक टीचर, हर एक मेंबर के सामने वो प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद जैसा भी प्रेजेंटेशन हुआ है, जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई डाउट बचे होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो यू आर वेलकम। आप कभी भी, आज वर्कशॉप के माध्यम से या कभी ईमेल के माध्यम से, कभी भी आप इसके लिए अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अभी हम इस पर एक FAQ भी रिलीज करने वाले हैं, 1-2 दिन में FAQ भी आ जाएंगे, तो उसमें भी आपकी काफी सारी क्वेरी सॉल्व होंगी। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारी जितनी भी क्वेरीज थी स्कूल लीडर्स की, प्रिंसिपल की, उनको सॉल्व किया। जो हमारे पास 15 के लगभग क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में मेरे पास ना कुछ इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस आ रहे हैं जो उसके अंदर एड्रेस नहीं हो पाए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नीता दुआ मैम को वो एड्रेस करें। मैं हैंड रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट। लक्ष्य जी मैम। और गुड इवनिंग यादव सर जी,
और एक्चुअल मीनाक्षी मैडम ने तो पूरा ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है सर्कुलर को, और जो हमारे डाउट्स थे वो यादव जी ने क्लियर कर दिए सारे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई ऐसे डाउट्स हैं इसके अंदर। मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो सर ने एक वर्ड यूज किया ट्रांसपेरेंसी, तो उसमें हमें ध्यान देना कि कोई पेरेंट्स या कोई हम पे ये ना है कि आपके हमारे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो किसी असेसमेंट में नहीं लिए गए या उससे कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो आपके पास जो एविडेंस हैं सारे वो एकदम ट्रू और रिकॉर्डेड होने चाहिए, ताकि मैडम, आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसको वहाँ सॉल्व करें पेरेंट्स की, क्योंकि डेफिनेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एक प्रिंसिपल का जो एक कमेटी जो बन रही है उसमें 5 मेंबर्स हैं, वो हर चीज के लिए मेंबर्स हैं, और एक एक्सटर्नल जो 2 टीचर्स आएंगे वो भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छा समझें। किसी भी रिकॉर्ड को जो स्कूल वाले कर रहे हैं, प्लीज आप उस रिकॉर्ड्स को जरूर आप चेक करिए कि उनका करेक्ट है, ट्रू है, उसमें असेसमेंट है कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि कमेटी बन गई है, प्रिंसिपल प्लस 5 मेंबर्स जो सेम स्कूल्स के हैं, तो जो रोल ऑफ जो टीचर है जो बाहर से आ रहा है वो भी अपना रोल बड़े अच्छे ढंग से प्ले करें, और वो जो भी है आपस में डिस्कस करके कमेटी डिसाइड करें कि ये जो स्टूडेंट है इसको जो मार्क्स दे रहे हैं ये परफेक्टली है कि नहीं। अभी मैंने अभी भी यादव जी को मैं बताऊंगी, अभी मैंने 2 बजे करीब 2 जो ऑडियो वीडियोस कुछ रिलीज हुए हैं, काफी लोगों ने किए हैं इसमें, वो मैंने सुने अभी यूट्यूब में। तो एक मेंबर ने ये आंसर दिया कि उसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चे का कुछ भी नहीं है हमारे पास, जैसे सर ने बोला कि टीचर ही गाँव चला गया, तो ऐसे कुछ बच्चे भी पूरा ऐसे साल भर हमारे बीच में आए ही नहीं है, वीडियो तक नहीं उन्होंने ऑन किया, ना असेसमेंट सबमिट किए। तो आंसर ये मिला था उसमें, उन्होंने दिया, रिसोर्स पर्सन थे वो भी, तो उन्होंने बोला क्लास 9th का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि फिर 10th में जो इतना बच्चा पढ़ रहा है तो उस बच्चे को ये लिए क्या किया जाए। अभी मेरे सामने भी एक बच्चे का था प्रॉब्लम, उसने कुछ दिए कुछ नहीं दिए, तो अगर उसको हम स्कूल बुलाते हैं तो ऑफलाइन वाली प्रॉब्लम आती है, अगर ऑनलाइन करते हैं तो फिर वो लगता है कि कुछ चीटिंग ना कर लें। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे, तो हम सारी प्रॉब्लम्स जो कमेटी अपने सामने रखे, उस प्रॉब्लम्स को सारा एक बार FAQ बना ले अपना, और डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल मेंबर से भी इंटरनल से भी, और 2 और 3 डेज लगा के सारे अपने इशू सॉल्व कर लें, और उसके बाद रिजल्ट प्रिपरेशन करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास इतना कुछ है बच्चे के बारे में, अगर एक बच्चा रेगुलर स्कूल भी आता है और उसने अपनी क्लास अटेंड करी है, उसने आपको कुछ लिसनिंग प्रोसीजर में सुनाया है या रीडिंग करी है या कुछ भी लिखा है, PDF डाला है उसने, तो आप उसके बेस पे उसको असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको भी मार्क्स का ये मीनाक्षी मैडम ने पूरा बता ही दिए, जो ऑलरेडी सर्कुलर में गिवन है कि 20 मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट की सब स्कूलों की प्रिपरेशन तो है, लेकिन जो 80 मार्क्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी कि आप पोर्टफोलियो है या आपके पास ऑनलाइन एग्जाम है या ऑफलाइन है या प्री बोर्ड एग्जाम है, तो आप एक अच्छे ढंग से उसको असेसमेंट का एक चार्ट बनाएं। और मुझे डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि सब स्कूल के प्रिंसिपल्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और नीता वो मैम, बहुत कुछ अटेंडेंस ने हैंड रेज करे हुए हैं, हाँ, उनकी क्वेरीज पहले ले लेते हैं हम। हाँ ले लो, अब ले लेते हैं। ये फर्स्ट हैंड रेज विद अस इज Prapantika ma'am. Please unmute Yeah, yourself. yeah. Good evening, ma'am, and good evening, sir. Nicely explained by Meenakshi, ma'am. I just want to confirm one thing. If one teacher, he is PGT, if he takes or she takes class 10th, should we consider him or her as external, teacher, or we have to take only TGT? sir, No, actually, we have to call the TGT only, because whether the concerned PGT is teaching that class or not, that is very difficult to confirm. So better to TGT only. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you so much. Next we have Shweta ma'am. Please unmute. नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस समय जैसे कि टीचर्स कम है, कुछ गांव चले गए और कुछ वैसे ही ऑनलाइन के चक्कर में, और बच्चे भी कम, तो इस समय जैसे टीचर कम है, तो एक टीचर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रोल प्ले कर सकता है क्या? जैसे अपने स्कूल में वो इंटरनल भी है और किसी और स्कूल में एक्सटर्नल भी है, ये क्योंकि भी टीचर नहीं गिनती के। बिल्कुल मैम, ये ये कर सकते हैं आप, हाँ, ऐसा कर सकते हैं? आप डेफिनेटली यू कैन डू। ओके मैम। ये अस्मा खान भी है, रेस कर रहे हैं, अस्मा खान। मैम प्लीज अनम्यूट अस्मा मैम।
हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अस्मा, लिटिल एंजल्स ग्वालियर से। मैम, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो आपने कहा है कि हमें सारे चीजों का रिकॉर्ड रखना है, अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है क्वेश्चन मेरा सिली हो, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो, या फिर जैसे सपोज हमने जो भी उनसे सबमिट करवाए हैं कराया उनको कह रहे हैं हम, पीडीएफ में जो भी लिया आपने, जो रिकॉर्ड आपके पास है। अब मैम इस चीज में एक जैसे कंडीशन आता है, इनिशियल डेज में जब हम लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस करी और ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, उसमें कई बार हम लोग ने एक्टिविटीज के माध्यम से उनको मार्क्स दिए हैं कि उन्होंने अपना स्क्रीन पे दिखाया, हमने उसके बेसिस पे मार्क्स दिए। वो चीज हमारे पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, वो भी ओके आल्सो, तो हमारे पास है ना आपके पास? हाँ जी मैम, हमारे पास रिपोर्ट का सॉरी कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्टिविटी कराई है जिसका आपके पास कोई ऑन पेपर रिकॉर्ड नहीं है बच्चों की तरफ से, बट टीचर हमेशा अपने पास रिकॉर्ड रखती है कि मैंने किस ग्रेड में क्या एक्टिविटी कराई है और उस बेसिस पर मैंने ये किया है। तो जैसे हम डायरी मेंटेन करते हैं, हमारी टीचर्स डायरी होती है, उसमें हम लिखते हैं, उसी तरह से इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन में हमेशा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, तो आपके पास वो रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट है कि आपने वो एक्टिविटी उस दिन कराई थी और उसके बेसिस पर आपने ये जैसे मीनाक्षी में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर ये चेकलिस्ट भी की है और नेम भी दे रखा है एक्टिविटी, तो एवरीथिंग ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैम हमारे पास हम लोगों ने मैम जो रिपोर्ट भी दिए हैं बच्चों को, हमारे पास रिपोर्ट का तो पूरा हर चीज है उस चीज में, जहाँ पर पेरेंट्स ने आके साइन भी किया है, ये भी पता है कि उसको पीरियोडिक में इतना मिला या क्विज में इतना मिला या असाइनमेंट में इतना मिला, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन का एविडेंस अगर नहीं हुआ तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन कर रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं पुट अप होगा? उसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन आपके पास एक डेट वाइज चेकलिस्ट तो होगी ना, राइट? क्या एक्टिविटी करें। इवन आप देखिए, जब हम सीसी में एक्टिविटीज कराते थे क्लास के अंदर, तो हम हर समय फोटोज नहीं खींचते थे, हम हर समय रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता था और हमारे पास एक उसका एक ब्लू, इसका एक साथ में हमारे पास एक उसका एक चेकलिस्ट होता था और हमारे पास एक क्राइटेरिया होता था कि हमने इस एक्टिविटी में बच्चों को किस बेसिस पे ग्रेड्स दिए हैं, A+ कब दिया है, A कब दिया है, तो वो आपके पास, वो भी आपके एविडेंस ही है। जब मेन प्रोसीजर ये कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन एक था आपका, 2000 में अडॉप्ट किया है, तो सेम वही प्रोसीजर है, रेगुलर असेसमेंट। मैम हमारे पास नेक्स्ट भी है क्वेरी, मैम काफी क्वेरीज आई थिंक सॉल्व हो गया हो। ओके बस एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर मिल जाए मौका सर। मैम प्लीज मैम। ओके मैम, सपोज जैसे कि हमारे बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने, फॉर एग्जांपल अपने प्री बोर्ड में, और उनके लिए एक तो ऑप्शन ये है कि वो दोबारा से पेन पेपर एग्जाम दे सकते हैं एज सेड बाय बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इन केस इफ दे आर सेइंग कि उनको यही वाले टर्म में मार्क्स चाहिए हैं, तो क्या हम उनका दोबारा से ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं बिफोर 15, एक ऑनलाइन एग्जाम? जो एब्सेंट बच्चों का ले सकते हैं, इनका नहीं ले पाएंगे आप। अच्छा ओके। अभी यादव जी को आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें से? यादव सर, मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज। एग्जाम तो 15 तारीख तक आप, अगर बच्चा अपीयर नहीं हुआ है या दोबारा भी देना चाहता है, लेकिन उसका प्रॉपर एक पॉलिसी आपको फ्रेम करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे फिर बाद में कहेंगे मेरा भी रह गया, मुझे भी देना था। फिर वो सारे ही आ जाएंगे एक साथ एग्जाम में। हाँ, तो वो एक पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। वही मैंने शुरू में कहा कि जो भी आपको एक पॉलिसी ट्रांसपेरेंट बना के रखनी पड़ेगी, यही आपको। सर मैं ये बोल रही थी, अपने मैनेजमेंट में पूरे मिनट्स बना लें सर, और उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग स्टार्ट करें। कोई भी चीज हम करें वो ऑन पेपर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में अप्रूव्ड होनी चाहिए। आई थिंक ये जो हमारी कमेटी बनी है, उसको इन सब चीजों को बारीकी से सोचकर उस पर बात करके, और एक पॉलिसी जैसे हमें सीबीएसई ने दी है, उसी तरह से हमें अपने स्कूल के लिए एक पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी कि हर सिचुएशन को देखते हुए, मेरे स्कूल में जो सिचुएशन है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे स्कूल में, तो अपने स्कूल को देखते हुए उस पॉलिसी को बीच में रख के, जो हमें सीबीएसई से मिला है, दैट इज द मास्टर, यू कैन से रोल, उसको देखते हुए हमें अपनी पॉलिसी डेवलप करनी है। और ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं कि बच्चे ने अपीयर किया है, बच्चा दोबारा कह रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू द सिचुएशन एंड स्कूल, एंड एक पॉलिसी हर स्कूल अपनी बना ले और उसके हिसाब से चले। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है कि जो सब्जेक्ट 6th है वो आंसर नहीं हुआ, तो उसमें एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि आपके जो भी 3 बेस्ट सब्जेक्ट है, वी कैन टेक आउट द मीन ऑफ द बेस्ट 3 मार्क्स। सर यही यूज करना है उसके अंदर
for 6th and 7th subject. So you can take out mean of the best 3 marks and we can put that marks. और एक query सर और है जो एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करवाना चाहूंगी सर से. I don't know whether I am able to clarify it on my own or not. सर यादव सर, कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे हैं जो 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट जो बच्चों ने लिया है वो 50-50 जैसे वोकेशनल वाले सब्जेक्ट्स हैं. तो उन वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास अभी हम चाहेंगे कि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हमें दे दें आप. जैसे मेरे स्कूल में FMM है, रिटेल है, IT है, तो उसमें 50% का है. तो उसमें भी हमें यही क्राइटेरिया यूज करना है या बोर्ड में कुछ और पॉलिसी देगा उसके लिए? क्राइटेरिया तो यही रहेगा, लेकिन FAQ में हम इसको क्लियर भी करा देंगे अभी. जी. जो परसेंटेज है जो इसमें रखा हुआ है कि आउट ऑफ 10, 30 एंड 40 करना, तो सेम परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट फॉर द सब्जेक्ट हैविंग 50 मार्क्स. एवरेज कर सकते हैं उसको. उसका ब्रेकअप अगर आ जाए क्लियर हो जाएगा, सबको ब्रेकअप मिल जाए उसका भी. जी. और नेक्स्ट क्वेरी एक था, अगर सब्जेक्ट आपके स्कूल में हिंदी और संस्कृत और फ्रेंच भी है तो उसमें लैंग्वेज टीचर हमें एक्स्ट्रा लेने हैं या उसमें कैसे होगा सर? नहीं, लैंग्वेज टीचर तो 2 ही लेने हैं. ओके सर, कोई भी 2 लैंग्वेज टीचर आप ले सकते हैं. कोई भी ले लें, whether he or she teaching the subject or not. कोई भी 2 लैंग्वेज टीचर. अब फ्रेंच में शायद प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इंग्लिश हिंदी टीचर 2 लैंग्वेज हो जाएगा, संस्कृत भी हो जाएगा. ठीक है. So I like to mute some else. Okay, ma'am, please unmute from academic head from Queen's Global School. Thank you so much, sir. Good evening, everyone. My query is a little different. Student from my school took TC in March due to some personal reasons they had. So we had already uploaded our internal assessment marks on the CBSE portal and we did not enter marks for him, sir. Now when CBSE declared that there will be like this kind of promotion policy, the parents approached us back and they want us to consider the child back. So we can consider him, but can we upload the marks again for him? The internal assessment marks. No, March 21 they have taken the TC. Sir, in between March they have taken the TC. They had some problems. March 21. No? Sir, yes, sir, I can't. Yes, sir, I can't tell the exact date for you. No, this current year. Yes, current year, sir. March. Current year. Yeah. What you have mentioned on their TC? 10th passed or 10th appearing? What you have mentioned? Studying. Studying only means you have to declare the result. Sir, my problem is I have already entered the marks of internal assessment on the CBSE portal without his marks now. So what do I do next? Oh, for these students you have not entered the marks in that. Yes, sir. इसके लिए missing है इस बच्चे के लिए. No, then you have to send that marks manually to concerned regional office. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. We'll be doing it. Next, I'm going to unmute Poonam ma'am. Please unmute. My greetings to all. My question is, the session was online and most of the tests were conducted online, whether it was PT1 or midterm, or I can say even pre-board also. And in this year, if students got more marks than my reference year, what should we do while calculating the marks? If I calculate the marks and I'll get more marks than my reference year that CBSE is going to show us, what should we do then? No, it is not a matter of single student. Average marks will be calculated for all the candidates. Suppose candidate has got 100 marks, so it is not necessary that all they will get 100 marks. So naturally, when you calculate the average of all the students for that subject, it should be within the range of that data shown on your login. Compared to previous year, no? Yes. Yeah. Okay. Thank you, sir. Next is Rahul. Rahul, please unmute. Rahul from Model Public School. Sir, good evening, sir. Myself Rahul Tripathi from All Model Public School. My question is कि हमारे बगल में एक स्कूल है, उसने अपने 2 टीचर ऑलरेडी जो है कहीं और असाइन कर दिए हैं.
लेकिन अब मुझे जो है, क्या मैं उनके दूसरे सब्जेक्ट के कोई और 2 टीचर्स ले सकता हूँ अपने लिए इवैल्यूएशन के लिए, एक्सटर्नल, बीइंग एज एक्सटर्नल? टीजीटी के लिए तो हमने जो एक्सटर्नल लोग हैं उसके लिए तो सब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है, वो तो कोई भी 2 टीजीटी ले सकता है। टीजीटी नहीं, टीजीटी मान लीजिए उन्होंने अपने यहाँ से 2 टीचर्स किसी और स्कूल में भेज दिए हैं, अभी उनके पास 3 टीचर्स और बचे हुए हैं, तो क्या मैं 2 और टीचर्स ले सकता हूँ उनसे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो टीचर अपने स्कूल की कमेटी में भी काम करेगा और बाहर भी करेगा। ऐसा नहीं सकता है ना, 2 टीचर्स पर स्कूल जाने हैं। मेरे स्कूल में ऑलरेडी आई हैव मोर देन 15 टीजीटीज, तो इट्स नॉट नेसेसरी जो 10th को पढ़ा रहे हैं वो 15 टीजीटी है जो 10th को पढ़ा रहे हैं। आई हैव गॉट 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 10, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 टीचर्स को भेज सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उन 15 के 15 को भी भेज सकती हूँ। हाँ, 2-3 स्कूलों में भेज सकते हैं अगर मेरे हेल्प करनी है तो उन्हें भेजेंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेशन एंड दिस इज व्हाट बेसिकली सीबीएसई वांट्स, कि हम लोग सारे स्कूल्स मिलकर काम करें। ये भी एक बहुत अच्छा हिडन इसमें एक ऑब्जेक्टिव है सीबीएसई का, कि हम जो आ जाएगा इसमें बात करते हैं वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खुद ही बन जाएंगे रिजल्ट बनाते बनाते। नहीं, ठीक मैम, थैंक यू मैम। Thank you, Rahul ji. Next is Mr. Siddharth Singh. I just want to intervene. It's 4:51 और हमें 5 बजे से पहले वाइंड अप करना है, सर को भी मीटिंग में जाना है दूसरी। तो वर्षा मैम होंगे, उनकी भी क्वेरी है। वर्षा मैम फ्रॉम जल्दी से जल्दी जितनी भी क्वेरीज हैं शॉर्ट के अंदर अपना पूछिए। Last 2 minutes regarding the 2 teacher from the same school ना, वर्षा मैम शायद है नहीं मैम। 4 हाँ वर्षा मैम। Good afternoon to you all. Ma'am, that query is solved already. That Meenakshi ma'am told that so many teachers can be go same school also. Same school. That query solved, ma'am. Thank you, ma'am. Already 2 teachers from the same school taken na. Next is Sonu. Please ask your query, please. Good evening. I just want to ask sir whether we can take pre-board for all the students again if we need to. मतलब एक प्री बोर्ड कंडक्ट 15th मई से पहले हम कर सकते हैं, बिकॉज वी कुड नॉट कंडक्ट, वी हैड शेड्यूल्ड इट इन अप्रैल। मैम यू टेक कंसेंसस इन योर कमिटी दैट यू विल मेक। आप अपनी कमिटी में डिसीजन ले लीजिए। अगर आपकी कमिटी को लगता है सीबीएसई ने तो 15 मई तक का डेट दिया हुआ, आप जितने एग्जाम चाहे वहाँ ले सकते हैं। थैंक यू। आपके कुछ तो एग्जाम होंगे ना, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी को असेसमेंट करो आप। अच्छा, बच्चा बड़ा पैंडेमिक में टफ टाइम चल रहा है, बहुत बढ़ाने वाली बात है। कोई बच्चा कोविड से है, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है इस वक्त, वैसे ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड दिस इज नॉट द राइट टाइम। प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों को, स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। So the pre-board marks we can assess on some other basis based on the consensus, है ना, जो कमिटी डिसाइड कर सकती है। Definitely, you can. Thank you. Next is Mr. Noble Thomas. Good evening, sir. This is related to the 6th subject. We have conducted regular exams for the 6th subject also. So is it compulsory to go for the average, or can we use the original marks of the 6th subject? Sir, as per circular is yes. Rest, yes, sir will tell better. Yadav sir. You can take, since you are having that actual marks, so you can take that one also. There is no issue. But these things should be documented. Whatever decisions you are taking, that should be documented and signed by all the committee members. It should be brought to notice of all the members that you are taking this decision. Sure, sir. Thank you. So last question for today by Sarika Kumar. Ma'am, please unmute. Good afternoon, everyone. This is Sarika Kumar, Principal, Smartman School, New Delhi. A quick question. As we have got the time schedule for all the events, so my only question is related to the rationale document, as we will be, clarifying and giving something on pen and paper, that the rationale document, what we will be following, whether it will be the best or whether it will be an average, or what criteria we will be following. Along with that, the signature is required in that document. Are the schools required to send that document somewhere to the CBSE? This is my first question. And second thing is, the signatures are required for the different committee members. So what we can do for that? Digital signatures are available. Can do all the documentation on mail, and their feature of signature on mail as well. You can follow that practice. Rest, sir, want to add anything in that?
So just one That thing. is correct. And you need not to send any document to anywhere. You have to keep all the records with your school. Okay. Thank you so much. एंड सर एक कॉमन क्वेरी थी वो रह गई, जैसे अभी दिल्ली पूरा क्लोज्ड है तो हमें मीटिंग सारा ऑनलाइन करें, उसके प्रूफ सारे ऑनलाइन रखें, दैट विल बी ओके? कोई फिजिकल मीटिंग की जरूरत तो नहीं है हमें? हाँ, ऑनलाइन रख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, आपका ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन मीटिंग रख सकते हैं। लक्ष्य जी ऑलमोस्ट सारी क्वेरी कवर हो चुकी है। बिल्कुल रोहित जी, ऑल थिंग्स हैज बीन डन एंड सेटल्ड एंड नाउ आई अगेन इनवाइट रोहित दुआ जी टू गिव वोट ऑफ थैंक्स। और दो शब्द मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। The whole credit goes to Rohit ji because he called me yesterday कि कुछ करो इस चीज के लिए, उठो पार्थ, इस परेशानी से उठो, इस संकट की घड़ी से बाहर निकलो। इंडस्ट्री के मिस्टर लक्ष्य छाबड़िया, इनको हम बजरंग बली भी कहते हैं हमारे, उनको हम कल वैसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे। हम डेली बात करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये हुआ कि ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्कूल काफी इसमें मोरल डाउन है, तो एक मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, सबसे डिस्कशन करते हैं और काफी अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक्स टू जेके यादव सर, मीनाक्षी मैम, नीता दुबा मैम एंड ऑल द अदर फेलो मेंबर्स। सो ऐसे कोई भी डिस्कशन हो, हम लोग हमेशा आगे रहते हैं और लक्ष्य जी का साथ रहता है। हमारे एसोसिएशन के बाकी सब लोगों का थैंक्स और सब टीचर प्रिंसिपल्स का जो यहाँ पे आए। स्पेशल थैंक्स सीबीएसई को, सारी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि सर आज भी ऑफिस में है, इतना कुछ सब कुछ चल रहा है सब जगह। सीबीएसई ऑफिस कभी बंद नहीं होता। हमें कुछ टाइम पहले स्कूल में भी बोर्ड के एग्जाम तो नहीं हुए थे, हमने सीटेट के एग्जाम हुआ था, तो काफी सीबीएसई लोगों से मिले, मैम भी मिले, हम लोग मिले। सबने काम रात को 10-10 बजे तक, जब लॉकडाउन था, बंद था, तब भी हम वहाँ पे ऑफिस में गए हैं। तो सीबीएसई को हेड्स ऑफ है, अच्छे से काम कर रहे हैं और हम सब सीबीएसई अटैच्ड हैं, हम साथ में अच्छे से कर रहे हैं। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल, और जल्दी हम यहीं मिलते हैं और होप कि बहुत जल्दी ऑफलाइन मीटिंग से हट के ऑनलाइन मीटिंग से हट के ऑफलाइन मिलें। हम लास्ट ईयर से कह रहे हैं ये बात और जल्दी पूरी होगी। थैंक्स टू यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। सर ओवर टू यू। सब सेफ रहें, अपना सब अपना ध्यान रखो, सब लोग सब ध्यान रखें, सब सेफ रहें, सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ये ईश्वर से मनोकामना है। नहीं, आप लोगों के पास एक फोरम है, अगर इसके बाद भी कोई क्वेरीज आती हैं तो आप इकट्ठा कीजिए और हम कोशिश करेंगे उसको कि एक FAQ में डाल देंगे, जिससे वेबसाइट पर सभी लोगों को उसका आंसर भी मिल जाएगा। धन्यवाद। क्वेरीज, फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम। बस सर, अभी नेक्स्ट एग्जाम का आपका वेटिंग है क्लास 12th के लिए। यस, दैट आल्सो वी आर डिसाइड। के लिए भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आएगी सीबीएसई, आई एम वेरी श्योर। बिल्कुल, डेफिनेटली, वेरी श्योर अबाउट दैट। दोबारा मीटिंग करने बैठेंगे, इस बहाने मिलेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट। कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल सर। थैंक यू, सभी को धन्यवाद।